صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین. الحمد للہ البر الجواد الہادی الی سبیل الرشاد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المنزہ عن الانداد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المؤيد بالملائكة في الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا العلم في البلاد صلاة كاملة دائمة إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بڑا لمبا اور وسیع عنوان ہمارا جو شروع ہوا، ایک اہم مقصد کو لے کر الحمدللہ میں نے شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی بھی عطا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب ہی ہوتے رہیں گے. میں نے گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلی والی جمعہ تقریباً والدین کی خدمت اور اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق کچھ باتیں عرض کیا تھا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا ایک مکمل نظام بنائے. اس کے نظام بنانے کے وہی ایک مالک ہیں اور اس کے نظام کو وہی جانتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا درجہ انسان کا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس انسان کو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں تو اسے بھیجنے کا ایک انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نرالا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو آسمان سے پانی کی طرح ٹپکا بھی سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو کسی درخت کا پھل بنا کر نکال دیتے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسان کو زمین میں سے اگا دیتے. لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا کہ اس انسان کو حضرت آدم اور حوا کے بعد اس کو دنیا میں بھیجنے کا ایک نرالا انداز ہے. پہلے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوگا، کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوگی. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے نطفے سے ایک عورت کے رحم مادر میں داخل کرتے ہیں. پھر اس کو 9 مہینے تک ایک عورت کے پیٹ میں اپنی قدرت سے نظام سے پالتے ہیں، بناتے ہیں. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اسے بھیجتے ہیں. اتنا کمزور بن کر انسان دنیا کے اندر آتا ہے. آپ تحقیق کر کر دیکھیں کہ اتنا کمزور تو دنیا کی کوئی چیز دنیا میں آتے وقت نہیں ہوتی. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو انتہا نہایت ہی کمزور بنایا ہے. اتنا کمزور انسان بن کر پیدا ہوتا ہے جس کی کوئی مثال، کوئی حد نہیں. بلی بھی بچے پیدا کرتی ہے، کتیا بھی بچے پیدا کرتی ہے، دنیا کے پرندے اور درندے چرندے بچے پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. ابھی بکری بچہ پیدا کرتی ہے، وہ بچہ کان ہلاتے ہوئے، جسم کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن انسان اتنا کمزور پیدا ہوا کہ اسے کچھ بھی کرنا نہیں آتا، نہ کوئی پکڑنا آتا، نہ بیٹھنا آتا، نہ کھڑنا آتا، نہ برابر نگاہوں کو ٹکا کر دیکھنا آتا ہے. اب اس کمزور انسان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم الشان شخصیتوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا. میں 2 جمعہ پہلے ایک بات عرض کیا تھا، بڑی نکتے کی بات تھی، وہ ہمارے اکابر کی. جس سے درد ہوتا ہے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر یہ 2 ہی ذات ایسے ہیں، اور بالخصوص ماں ہی ایک ایسی ذات ہے. درد ہوتا ہے بچے کے پیٹ میں بننے سے لے کر پیدا ہونے تک، لیکن اسی بچے سے ماں جتنی پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان سے کوئی ذات اتنی محبت نہیں کرتی. سب سے پہلے انسان سے بے حد، غیر متناہی، بے حساب، بے مثال، بے مقصد محبت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ سے ساری کائنات کو فائدہ ہے، لیکن کائنات کی کسی شے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ فائدوں سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی پاک ہے. ہماری عبادتوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کسی رات میں یا شب برات کے موقع پر یہ بات عرض کیا تھا، اور مجھے یاد بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کیا عبادت گزار بندے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں ایسی مخلوق کو پیدا کیے ہیں، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں اربوں سال گزر گئے، آج تک 1 سیکنڈ کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے وہ مخلوق غافل نہیں ہے. ایسی عبادت کرنے والی مخلوقات ہے، ملائکہ ہے، ہواؤں کے پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں. یہ درخت کب بنے اللہ جانتے ہیں. ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف، یہ زمین اللہ کی عبادت میں مصروف، یہ آسمانیں اللہ کی عبادتوں میں مصروف، اور یہ پہاڑیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف. اتنی عبادتیں ساری کائنات میں ہو رہی ہیں. ان عبادتوں کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہی تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو پیدا کرنے والا ہوں، اس لیے تم اگر عبادت کرو تو میری عبادت کرو. دوسری طرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ تمہاری عبادتوں سے میری خدائی کے اندر ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے استاد تفسیر حضرت مولانا شاہ میران صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ساری دنیا اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ کی منکر بن جائے، تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ ایسے بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے محبت جو کر رہے ہیں، اور خصوصاً حضرت انسان سے جو پیار اور محبت کر رہے ہیں، بے مثال محبت، بے لوث محبت، بے مقصد محبت. سب سے پہلی ذات بغیر مقصد کے اگر کوئی کسی کو محبت کرنے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اپنے بندوں سے جب محبت کرتی ہے تو بندوں کے پاس خدا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اللہ کے بعد حضرات انبیاء کی جماعت، میری ترتیب پر غور کریں، اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ ترتیب آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ماں باپ کا درجہ تو ہے، لیکن ماں باپ کی محبت بھی حضرات انبیاء کی محبت کے بعد ہے. یہ عاجز کی چھوٹی سی تحقیق ہے. ایک نبی کسی بھی زمانے کا کیوں نہ ہو، حضرت آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، اپنی امت کے لیے ہادی بن کر، اپنی امت کے لیے رہنما اور رہبر بن کر
तमाम अंबिया अपनी उम्मत से बेमकसद और बेमिसाल मोहब्बत करने वाले। हजरत आदम औलाद से मोहब्बत करते हैं, कोई मकसद नहीं। हजरत नूह अपनी उम्मत से मोहब्बत किए, कोई मकसद नहीं। हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, जितने अंबिया भी अपनी उम्मत के लिए नबी बनाकर भेजे गए तो अपनी उम्मत से उन्होंने मोहब्बत की है। तो किसी नबी का मोहब्बत करने का कोई मकसद नहीं है। अरे मैं उम्मत से मोहब्बत करूं, मुझे तोहफे तहाइफ देगी, मेरी नबूवत के झंडे गाड़ेगी, मुझे मानने के बाद मेरे जलसे मुनक़िद करेगी, मुझे मानने के बाद मेरी तारीफ के पुल बनेगी, अपना खाना लाकर मुझे खिलाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे नबी से कहा, ऐ पैगंबर, आप जब अपनी उम्मत को सीधा रास्ता दिखाते हैं तो आपकी उम्मत के बाज अफराद जो मेरा और आपका इनकार कर रहे हैं, उनके दिलों के अंदर एक बात आ गई कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मोहम्मद औरत के लिए ये काम कर रहा है, मोहम्मद हुकूमत के लिए ये काम कर रहा है, मोहम्मद दौलत के लिए ये काम कर रहा है। आप अपने जुबान से मेरा कलाम पेश कर दीजिए, जुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। ऐ पैगंबर, आप अपनी जुबान से अपनी उम्मत को, क़यामत तक आने वाली उम्मत को इस बात का ऐलान कर दीजिए, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। ऐ पैगंबर, आप कह दीजिए, मेरी दावत और तबलीग से तुम्हारे तरफ से मुझे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मैं फरहान की चोटी में खड़े होकर तकरीर करूंगा, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। मक्के की गलियों में मैं तौहीद की दावत दूंगा, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। मदीने मुनव्वरा में दावत और तबलीग, अहकाम हलाल और हराम पेश करूंगा, मुझे कोई तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की तरफ से कोई हदीये का मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। आप कह दीजिए, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन। मैं उम्मत से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखता और उम्मत से मैं कभी किसी चीज का सवाल नहीं करता। मेरे नबी की 23 साल नबवी जिंदगी एक तरफ, 23 साल से पहले 40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी और बचपन का जमाना उठाकर देखे, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी 63 साल बेमिसाल और अजीम जिंदगी में किसी खानदान के फर्द के पास हो या अपने चाहने वाले बेमिसाल आशिकीन सहाबा के पास नबी ने कभी अपना हाथ ऐसा नहीं किया। पेट में पत्थर बांध लेते थे, भूखे पर भूखे रह जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम शख्सियत के घर के अंदर 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं सुलगता था। सहाबा मेरे नबी के पास दर्द लेकर आते थे, भूख लेकर आते थे, प्यास लेकर आते थे, अपनी हाजत और जरूरत लेकर आते थे। लेकिन खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, मेरे नबी अबू बकर से खास ताल्लुक था, उमर से खास ताल्लुक था। नबी के निगाहों के सामने उस्मान जैसा धनी मौजूद, नबी के निगाहों के सामने अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा बेमिसाल दौलतमंद मौजूद है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के सामने अपना हाथ सवाल का नहीं बढ़ाया, अपनी भूख को छुपाया, अल्लाह के सामने पेश किया, अपने दर्द को छुपाया, अल्लाह के सामने पेश किया, अपनी जरूरत को उम्मत और सहाबा के निगाहों से छुपाया, अल्लाह के सामने पेश किया। चुनाचे हज़रत सहाबा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने भूख की हालत को पेश करते और अपना झुब्बा और अपनी चादर और अपना कपड़ा पेट से हटाकर दिखाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे पापों को, आप देखिए हमारे पापों को कि हम भूख पर भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, हत्ता कि हमारा सब्र लबरेज हो चुका है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने अपने भूख को कम करने के लिए, तड़प को कम करने के लिए हमने अपने पेट में पत्थर को लगाया है। तब जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर नसीहत के सहाबा के सामने क्या कहा, तुम एक पत्थर बांधकर अपने नबी को दिखाते हो, जबकि दौलत मेरे कदमों के नीचे है, सोना मेरे कदमों के नीचे है, चांदी मेरे कदमों के नीचे है। ये नहीं देखते उहद का पहाड़, अभी जिब्राइल आए मेरी तड़पती जिंदगी को देखकर
पहुंचा, नबी से अब्दुर्रहमान बिन औफ को फायदा पहुंचा है, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से नबी को फायदा नहीं पहुंचा। खुद नबी के रिश्तेदारों को भी नबी से फायदा पहुंचा है, लेकिन रिश्तेदारों से नबी को फायदा नहीं पहुंचा। दाई हलीमा के बारे में आता है, हजरत दाई हलीमा दुबली पतली थी, हजरत दाई हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली थी, हजरत दाई हलीमा की बकरियां दुबले पतले थे, थनों में दूध तक नहीं था। जमाना कहता है दाई हलीमा ने नबी को पाला है, लेकिन शरीयत और हकीकत कहती है नबी ने दाई हलीमा को पाला है, नबी ने दाई हलीमा को पाला है। आई थी नबी को लेने के लिए, किस हाल में, जब नबी को गोद में रखकर जाती है तो क्या हाल सीरत निगारों ने पेश किया, तारीख ने पेश किया था। दुबली ऊँटनी मोटी हो गई, कमजोर ऊँटनी कवी हो गई, पीछे रहने वाली आगे हो गई। जब घर को गए हजरत इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साद खानदान के अंदर दाई हलीमा बनु साद के खानदान की रहने वाली थी। तो मक्के की जमीन बड़ी गर्म और आसमान से बड़ी सख्त धूप है, लेकिन जब नबी को दाई हलीमा लेकर अपने घर जाती है, अल्लाह ताला ने अबर को हुक्म दिया कि ऐ अबर, जमाना शामियाने लगाता है, जमाना पंडाल लगाता है, जमाना बेहतरीन मोल्डिंग के घर बनाता है, सब साये बेकार है, लेकिन अल्लाह का साया बड़ा बाकार है। अल्लाह के साये का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। शामियाना हो लेकिन धूप हो, अंदर गर्मी रहेगी, बेहतरीन मोल्डिंग हो, आरसीसी हो लेकिन धूप हो, अंदर बराबर गर्मी रहेगी। अल्लाह ने कहा ऐ अबर, जा बनु साद के पूरे कबीले में उस घर के ऊपर तू साया बन जाना जिस घर के नीचे मेरा हबीब पल रहा है, उस घर के ऊपर तू साया बन जाना जिस घर के साए में, जिस घर के छत में मेरा नबी आराम कर रहा है। दाई हलीमा को नबी से फायदा हुआ, नबी को दाई हलीमा से फायदा नहीं। अबू तालिब को नबी से फायदा हुआ, लेकिन अबू तालिब से नबी को फायदा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब को नबी से फायदा हुआ, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब से नबी को फायदा नहीं। मेरा ईमान, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क कहता है हुजूर के अब्बा अब्दुल्ला को भी मेरे नबी से फायदा हुआ। अगर अब्दुल्ला के घर में मेरा नबी न पैदा होता तो फिर अब्दुल्ला को पहचानने वाला कौन होता? आमिना के घर में मेरा नबी पैदा न होता तो फिर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानने वाला कौन होता? आज आमिना को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे नबी की माँ की हैसियत से पहचाना चाहता है, तो फिर फायदा मेरे नबी से फायदा सारे आलम को हुआ, लेकिन आलम में से मेरे नबी को जरा भी फायदा नहीं है। हम लोग सुन्नतों पर अमल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं मेरे दोस्तों हम दाढ़ी रखने से मेरे नबी को फायदा होगा, हम टोपी पहनने से मेरे नबी को फायदा होगा, सुन्नतों को जिंदा करने से मेरे नबी को फायदा होगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे नबी के फायदे का हमी का इल्म है, अल्लाह जानता है, मेरा नबी जानता है। अपनी उम्मत को अगर सुन्नत का रास्ता दिखाया मेरे नबी ने, हिदायत का रास्ता दिखाया मेरे नबी ने, सच्चाई का रास्ता दिखाया मेरे नबी ने, उम्मत ही का फायदा है, मेरे नबी का फायदा नहीं है। इस बात को अपने अंदर रख लो। अमल करने वाले भी इस बात को सीने में बिठा लो, अमल नहीं करने वाले भी इस बात को सीने में बिठा लो। अगर अमल करते हैं तब भी हमारा फायदा, अमल नहीं करते हैं तब भी हमारा नुकसान। दाढ़ी मुंडाने वाले दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, मेरे नबी का कुछ बिगड़ रहा है? टीवियां रखने वाले टीवियां रखकर आंखों का जिना कर रहे हैं, मेरे नबी का कोई नुकसान है? अल्लाह कब्र में पूछ रहा है मेरे नबी को, ऐ पैगंबर तुमने क्या दावत दी, तुमने क्या तबलीग किया, तुम्हारी उम्मत दाढ़ियां मुंडा रही है, चलो हम तुम्हारे मर्तबे को घटा देंगे। अल-इयाज़ बिल्लाह। अल्लाह ये नहीं कहता मेरे नबी की दावत पूरी हो गई, मेरे नबी की तबलीग पूरी हो गई, मेरे नबी का मुजाहिदा पूरा हो गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और काम पूरा हो गया, जब चले गए अल्लाह ताला के पास। इस वक्त अमल करने वाला उसको उसका फायदा है, अमल नहीं करने वाले को उसका नुकसान है। दूसरी जात बेमकसद अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो अंबिया की जात है, जिनके सीनों में जरा भी उम्मत से प्यार करने का कोई मकसद नहीं होता। तीसरी जात कौन सी? वालिदैन की, जब अपनी औलाद को मोहब्बत करती है, बेमकसद मोहब्बत करती है। ये तीसरी जात के अलावा दुनिया का हर रिश्ता अगर प्यार और मोहब्बत करता है तो कुछ न कुछ मकसद बीच में होता है, कुछ न कुछ मकसद बीच में होता है। शौहर बीवी से मोहब्बत कर रहा है, कपड़े ला कर दे रहा है,
जेवर पहना रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, किस लिए कर रहा है? किस लिए कर रहा है? उसका एक मकसद है। एक मकसद नहीं, कई मकासद बीच में हैं। कपड़े भी दिलाया, खाना भी खिलाया, पार्क को जाकर फिराया, आइसक्रीम खिलाया, फिर घर को आकर अगर वो बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराई नहीं, कच्ची गाली देता, तेरा नहीं देता। घर को आने के बाद वो बीवी अपने शौहर को देखकर अगर नहीं मुस्कुराती तो फिर इन्हें क्या क्या करया कि पूरा बोलता, बोलता नहीं बोलता, खई करे सका पूरा बोलता, मैं तुझे ये करया, वो करया, वो करया, पूरा बोला था। अपोजिट, बीवी अपने शौहर के कपड़े धो रही है, खाना पका रही है, अपने शौहर के बच्चों को पैदा कर रही है, घर संभाल रही है, अपने शौहर की इज्जत और इस्मत की हिफाजत कर रही है। ये तमाम तरफ से मोहब्बत की शक्लें पेश करके अगर शौहर उसे वक्त पर उसकी जरूरत पूरी नहीं किया, 10 रुपए पूछने पर 10 रुपए नहीं दिया, तो फिर शौहर क्या बीवी क्या करती है? बोलूं नहीं समझ रही? समझ रहे हैं। 100 रुपए के वास्ते खुला का पेपर पेश कर रही है, 100 रुपए के वास्ते खुला का पेपर पेश कर रही है। मियां बीवी की मोहब्बत तो अपनी जगह पर है, लेकिन मकसद बीच में है। भाई बहन की मोहब्बत तो है, लेकिन मकसद बीच में है। लेकिन 3 ही जातें ऐसी हैं, अल्लाह, रसूलुल्लाह और वालिदैन। पेट में मां अपने बच्चे को रखती है, 9 महीने तक दर्द बर्दाश्त कर रही है। क्या जरूरत है दर्द बर्दाश्त करने की? नहीं, वो अपने पेट में एक बच्चे को बनाना चाहती है। फिर वज़े हमल होता है तो दर्द बर्दाश्त करती है, फिर 2 साल तक दूध पिलाती है, फिर उसके साथ साथ उसके पेशाब और पाखाने को साफ करती है, उसे धुलाती है, धुलाती है, उसे प्यार और मोहब्बत निछावर करती है, उसके लिए रात को जागती है, चाहे माँ हो के बाप हो, रात जागते हैं। इशारा कर दिया, हर चीज बच्चे के लिए कुर्बान करते हैं। किस लिए? इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, मैं भी बच्चों का बाप हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बच्चों के बाप हैं। कभी हम ये नहीं सोचते हमारे बच्चों को प्यार करते हुए हम इसलिए प्यार कर रहे हैं जब हम बूढ़े हो गए तो ये बच्चे हमारे प्यार का बदला देंगे। नहीं, ये हमारे बच्चे जवान होने तक हमारी जिंदगी की गारंटी भी नहीं। चलो जवान भी हो गए, हम बूढ़े भी हो गए, इस जमाने में ये बच्चे बड़े होकर हमको पालने की भी गारंटी नहीं है। देखा गया जमाने में 80% से लेकर 90% तक मुसलमान, गैर मुस्लिमों की बात छोड़ो, चलो सबको भी मिला लो, 80 से 90% तक इंसान अपने वालिदैन को नहीं पाल रहे। इसीलिए तो ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, बूढ़ों को रखने की जगह। क्यों तुम्हारे घर तंग हो गए? तुम्हारे होम तंग हो गए? जब तुम पैदा हुए तो क्या तुमको जाकर तुम्हारी माँ ने चिल्ड्रंस होम में रखा? नहीं, अपने गोद में रखा, अपने छाती से लगाया, प्यार और मोहब्बत किया। जब यही बच्चे जवान होते हैं, थूको मगरिब की तहजीब पर, जिस तहजीब को हम सीने से लगाते हैं, जिसकी हर अदा पर आज का मुसलमान नबी का गुलाम कुर्बान हो रहा है, वो मगरिब के रूल्स और रेगुलेशन क्या है, वहाँ की तहजीब क्या है, वहाँ के अखलाक क्या है? सुनते हैं आप? सुनो दिल थाम कर। इस्लाम ने जो सबक दिया हम लोगों को, मेरे नबी ने अल्लाह की तरफ से जो सबक लेकर आ गए, अगर वो सबक हमको याद होता तो आज हमारी जिंदगियां ऐसी नहीं होती। क्या बेहतरीन सबक इस्लाम का। उससे पहले बताता हूं कुछ, मगरिब बताता हूं तुम्हारे सामने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, जापान, चाइना, फ्रांस, ये अंग्रेजी ममालिक, मगरिबी ममालिक जो अपने आप के बड़े झंडे लगाते हैं ना, अपने आप के बड़े झंडे लगाते हैं ना, मैं खुद कहता हूं, पूरा इस्लाम कहता है, तुम सबसे पहले अपनी पर्सनल जिंदगियों पर नजर डालो, तो फिर तुम अपनी तहजीब के झंडे गाड़ने के लायक और काबिल नहीं होंगे। अमेरिका को चाहिए मुआशरती जिंदगी पर नजर डाले, बर्तानिया को चाहिए अपनी मुआशरती जिंदगी पर नजर डाले। कुछ भी तकलीफ होती है
उस तकलीफ का कोई हल नहीं होता, तो अपनी तकलीफ के हल के लिए एक इंसान हुकूमत का दरवाजा खटखटाता है। समझ में आ रही है बात? हुकूमत का दरवाजा खटखटाता है, अदालत का दरवाजा खटखटाता है। एक औरत बूढ़ी ने एक अदालत का दरवाजा खटखटाती है एक लायर को रखकर, क्या मैंने मेरे बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, जब मेरा बच्चा जवान हुआ, मां को छोड़कर जवान लड़कियों के पीछे पड़ गया। अब लड़कियों के दलदल में ऐसे फंसा जिसकी कोई हद नहीं, और मेरी जरा भी परवाह नहीं। बाहर जाता है, लड़कियों के पीछे रहता है, घर के अंदर आता है, उसने एक कुत्ता पाल रखा है, अपने घर के अंदर अपना पूरा वक्त वो कुत्ते पर देता है। घर के अंदर दाखिल होकर हाय मॉम हाउ आर यू भी नहीं कहता, मुझे पूछता तक नहीं, मुझे सलाम तक नहीं करता, मेरी खैर आफियत दरियाफ्त नहीं करता, सीधे घर के अंदर दाखिल होता है, अपने कुत्ते को बुलाता है, कुत्ते के साथ कमरे को चला जाता है और पूरा वक्त अपने कुत्ते के साथ गुजारता है। एक तरसती मां की दरखास्त है अदालत से, एक तरसती मां की दरखास्त है अदालत से, मैं मेरे बच्चे के साथ बैठकर मोहब्बत के 4 जुमले बात करना चाहती हूँ, मैं 4 जुमले मेरे बच्चे से बात करूं, मेरा बच्चा मेरे से 4 जुमले बात करे, इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ मेरा फैसला करके दिन के 24 घंटे में 20 मिनट मेरा बच्चा मेरे साथ बैठने की इजाजत दिला देगी। गौर कर रहे हैं आप? एक मां अपने बच्चे से बात करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, दिन के 24 घंटे में 20 मिनट मेरा बच्चा मेरे साथ रह गया तो बस। जरा तरतीब देखो, हमारा इस्लाम क्या है? क्या है हमारा इस्लाम? कभी गौर किया? इस्लाम के एक एक हुक्म पर अगर मुसलमान अपनी निगाह डालता ईमानी, तो फिर गैरों का थूक कभी नहीं चाटता। मेरा जुमला सख्त होगा, बर्दाश्त कीजिए, गैरों की तहजीब को अपना लो। मुज़म्मिल का जुमला इस्तिलाही ये है कि उनके थूक को चाटने के बराबर है। गैरों की तहजीब, गैरों का तरीका। इस्लाम क्या है? मेरे नबी की जिंदगी, नबी को देखने से बड़ा कोई अमल है? नबी को देखना एक तरीके से खुदा को देखने के बराबर है। कैसे? मैं यहां नबी को खुदा नहीं बना रहा हूं, अल-इयाज़ बिल्लाह, नबी को खुदा का रूप नहीं दे रहा हूं। जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है, यहूदियों का अकीदा है और मुसलमानों के दरमियान में कुछ बरेलवी हजरात का अकीदा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरे जुमले पर जरा गौर करें। एक एतबार से नबी को देखना खुदा को देखना है। कैसे? इसलिए कि नबी ने अपनी निगाहों से खुदा को देखा, उन निगाहों को सहाबा ने देखा। नबी ने किसको देखा? खुदा को देखा, उन निगाहों को सहाबा ने देखा। मतलब ये हुआ कि सहाबा ने नबी के निगाहों से खुदा का दीदार किया। नबी को देखना कितना बड़ा अमल, कितना बड़ा अमल। सुभान अल्लाह, ये सआदत सिर्फ हज़रत सहाबा को मिली है। नबी को डायरेक्ट ईमान की हालत में, बेदारी की हालत में, पूरे होशो हवास के साथ नबी को देखा, सामने सामने, फेस टू फेस। नबी के पीछे नमाज पढ़े, नबी के साथ रोजे रखे, नबी के साथ हज किए, नबी के साथ जिहाद को गए, मौका मिल गया दस्तरखान में बैठे। ये सआदत हजरत सहाबा को मिली। अंबिया के बाद इसीलिए सहाबा का दर्जा है। ख्वाब में अगर कोई नबी को देखा, सहाबी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कि हालत बेदारी में, ईमान की हालत में नबी को देखना और ईमान की हालत में बराबर उसका इत्तिकाल होना, ये सआदत सहाबा को मिली है। नबी को देखना उसका सवाब तो है नहीं,
اتنا بڑا ثواب نبی کو دیکھنے کا کہ جس ثواب کی کوئی مقدار نہیں. نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب، روزہ رکھیں گے تو اتنا ثواب، زکات دیں گے تو اتنا ثواب، حج کریں گے تو اتنا ثواب، یہ کریں گے تو اتنا ثواب، وہ کریں گے تو اتنا ثواب. لیکن نبی کو دیکھنے کا ثواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نبی کو دیکھنے کا اجر. نبی کے زمانے میں ایک نبی کا عاشق تھا جسے اویس قرنی کہتے ہیں. نبی کے زمانے میں ایک نبی کا عاشق تھا جسے اویس قرنی کہتے ہیں. قرنی کیا ہے؟ قرن ایک گاؤں کا نام. قرن ایک گاؤں کا نام. اس گاؤں کی طرف نسبت ہو گئی تو قرنی، اس گاؤں کی طرف نسبت ہو گئی تو قرنی. ان کا خاص نام کیا تھا؟ اویس. اویس. ایک ڈکشنری کا جملہ بول رہا ہوں میں. نبی کے زمانے میں ایمان کی حالت میں جس نے نبی کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں. نبی کے زمانے میں ایمان کی حالت تھی، ایمان تو حاصل کیا، کلمہ تو ضرور پڑھا، لیکن نبی کو دیکھا نہیں، اسے خضرمی کہتے ہیں. خضرمی کہتے ہیں. نبی کا زمانہ. اویس قرنی خرن کے رہنے والے. نبی کو خبر پہنچی خر کے اندر ایک میرا غلام مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے کر آ گیا. ایک ضعیف روایت ہے فضیلت کی. صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر نبی نے فرمایا مجھے تمہارے ایمان سے زیادہ اویس کے ایمان پر فخر ہے. صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تمہارے ایمان سے زیادہ اویس کے ایمان پر فخر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے نبی کو دیکھا، قرآن کے نازل ہونے کو دیکھا، لیکن اویس نے نہ نبی کو دیکھا نہ قرآن کے نزول کو دیکھا، پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر آیا، اس لیے مجھے اویس کے ایمان پر فخر ہے. اویس کے ایمان پر فخر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے علی عمر، مجھے امید ہے کہ میرے بعد تم میرے عاشق اویس سے ملاقات کرو گے. مجھے امید ہے کہ میرے بعد تم میرے عاشق اویس سے ملاقات کرو گے. جب بھی تمہاری ملاقات میرے اویس سے ہو جائے تو میرا سلام سنانا. جب بھی میری ملاقات تمہاری ملاقات میرے اویس سے ہو جائے تو میرا سلام سنانا، اور میرا یہ کرتا میرے اویس کو دینا. پھر دوسری بات کیا؟ اویس سے کہنا کہ تمہارا نبی تم سے یہ کہا ہے کہ اس کی امت کی مغفرت کرے، دعا کرے. ارے ایک نبی کو اپنی امت کی دعا کی ضرورت. ایک نبی کو آپ امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب دعا کریں، لیکن نبی ایک صحابی کو بھی نہیں، بلکہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک خضرمی سے کہہ رہے ہیں اے عمر، اے علی، اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو اویس سے کہنا کہ تمہارا نبی محمد نے کہا ہے کہ اس کی امت کی مغفرت کی دعا کرنا. حضرت علی کو، حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا. نبی کو بھروسہ ہے اویس کی دعا پر، نبی کو بھروسہ ہے اویس کی دعا پر. نبی کا وصال ہوا، زمانہ گزرا، ابو بکر عمر کے پاس اویس کی امانت ہے. نبی کا چھپا، نبی کا چھپا. اویس کی تلاش میں جاتے ہیں، اویس سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام. نبی کی پہلی امانت سلام سناتے ہیں، دوسری امانت نبی کا جھکا دیتے ہیں، تیسری نبی کی خواہش پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ تم نبی کی امت کے لیے دعا کرے. حضرت اویس آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ کے رسول کا سلام لیے، اللہ کے رسول کا کرتا لیے، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیے، ابھی پہنے نہیں، اللہ سے اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف. اے اللہ، جب تک تو میرے نبی کی امت کی مغفرت نہیں کرے گا، جب تک تیرے نبی کا یہ جھبا اویس نہیں پہنے گا، جب تک تو میرے نبی کی امت کی مغفرت نہیں کرے گا، اویس تیرے نبی کا یہ کرتا نہیں پہنے گا. آسمان سے آواز آتی ہے کہ جا اویس، ہم نے تمہاری دعا سنی، تمہارے نبی کی امت کے ہم 1000 گنہگاروں کی تمہاری سفارش پر مغفرت کریں گے. حضرت اویس نے کہا کہ نہیں اللہ، اتنی مقدار پر میں تیار نہیں ہوں. کیا لاڑ
आसमान से आवाज आई कि जाओ उवैस, कल क़यामत में तुम्हारे इशारे पर तुम्हारे नबी की उम्मत के 70,000 गुनहगारों की हम मग़फ़िरत करेंगे। ऐ उवैस, जो नबी की मोहब्बत की, नबी के जमाने में मिसाल कायम कर दी, उहद के मैदान में जंग हो रही है काफिरीन और मुश्रिकीन और मेरे नबी और सहाबा के दरमियान। पता चला कि मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए। वो जमाना सर्जरी, ऑपरेशन, सुन होने की गोलियां और इंजेक्शन का दौर नहीं था। जो भी होता सामने सामने। उवैस करनी को पता चला कि मेरे नबी के दांत शहीद हो गए। आर्टिफिशियल दांत नहीं लगाए अल्लाह के रसूल। उस जमाने में आर्टिफिशियल दांत लगाते थे सोने चांदी के, लेकिन नबी ने नहीं लगाया। उवैस करनी को पता चला मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए, लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि कौन सा दांत शहीद हुआ। हजरत उवैस करनी जब सुने कि मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए, उसी जगह पर खड़े होकर पत्थर तलाश किया और पत्थर को उठाए और अपना एक दांत ऐसे ही मार कर तोड़ा। है हिम्मत किसी के पास? है हिम्मत? मोहब्बत का उवैस करनी के मोहब्बत का कतरा सारे आलम में खुदा फैला दे, सब आशिक बन जाए। उवैस करनी की मोहब्बत का कतरा अगर अल्लाह ताला सारे आलम में अगर तकसीम कर दिया, सब इसको मोहब्बत में लबरेज हो जाए। ऐसी मोहब्बत हजरत उवैस करनी की थी। एक दांत तोड़ते हैं, अंदर से ज़मीर से आवाज आती है कि उवैस तूने ये दांत तोड़ लिया। अगर नबी का ये दांत टूटा हो तो फिर ये कैसी मोहब्बत है। वो भी तोड़े, 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 पूरे मुंह के 32 दांतों को शहीद कर दिया। ऐसा बेमिसाल आशिक नबी की जियारत क्यों नहीं किया? नबी ने क्यों ताकीद नहीं की? उमर को क्यों नहीं भेजा? अबू बकर को क्यों नहीं भेजा? उस्मान को क्यों नहीं भेजा? अली को क्यों नहीं भेजा? जाओ मेरे आशिक उवैस को बुला कर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो मुझे देखना चाहता है। नहीं, मेरे नबी को पता चला था। नुज़हतुल मजालिस में एक वाक़या लिखा है उवैस करनी के बारे में कि हजरत उवैस करनी की मोहब्बत की जब खबर और इत्तला हुई अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल दिल में सोचने लगे, अल्लाह सारी दुनिया मुझे देखना चाहती है, लेकिन मैं उवैस को देखना चाहता हूँ। सारी दुनिया मुझे देखना चाहती है, मैं उवैस को देखना चाहता हूँ। आसमान से खुदा ने ऐलान किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा दीदार उवैस के साथ, उवैस का दीदार तुम्हारे साथ क़यामत में होगा, दुनिया में नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि वो क्यों इलाही? सारी दुनिया मुझे देखने के लिए, माँ बाप सारी दुनिया मुझे देखने के लिए सब कुर्बान करती है, लेकिन उवैस मेरे दीदार के लिए क्यों नहीं आ रहा है? मेरे दीदार के लिए क्यों नहीं आ रहा है? तो आवाज आई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें क्या पता है कि उवैस उसकी माँ का इकलौता बेटा है। उसकी माँ का इकलौता बेटा है। मैं वाकया क्यों पेश कर रहा हूँ? इस्लाम का सबक है, इस्लाम का सबक है, इस्लाम का सबक है। आज अगर माओ को मालूम हो जाए, ईसाई माओ को मालूम हो जाए, यहूदी माओ को मालूम हो जाए, पत्थर की पूजा करने वाली औरतों में से माओ को मालूम हो जाए माओ का दर्जा इस्लाम में इतना बड़ा है, तो फिर कलमा पढ़ाने के लिए उनको कुरान खोलने की जरूरत नहीं है। इस्लाम का ये बेमिसाल सबक देने की जरूरत है। जब ये सबक उनको मालूम हो जाएगा तो फिर फजीलत को हासिल करने के लिए वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएगी। फजीलत को हासिल करने के लिए कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएगी। उवैस अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। वो खिदमत की एक मिसाल अपनी जिंदगी में रखता है। खिदमत है दोस्तों, मेरी माँ की खिदमत है। इसका अदर किसी को नहीं मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा नबी के साथ एक हज किए, उसके बाद पूरी जिंदगी में एक हज किए। अबू हुरैरा हाफिज हदीस, बुखारी खोलेंगे रिवायतों में अबू हुरैरा का नाम सबसे ज्यादा मिलेगा। मुस्लिम शरीफ खोलेंगे अबू हुरैरा का नाम सबसे ज्यादा मिलेगा। तिरमिज़ी खोलेंगे अबू हुरैरा का नाम सबसे ज्यादा मिलेगा। सहाबा में नबी की रिवायतों को सबसे ज्यादा नकल करने वाले हजरत अबू हुरैरा है। 2 ही हज किए हैं, एक हज नबी के जमाने में, दूसरा हज नबी के बाद, जबकि उनके जमाने में बार बार हज को जाते थे। किसी ने अबू हुरैरा से पूछा कि अबू हुरैरा तुम हज क्यों नहीं करते? सब तुम्हारे निगाहों के सामने से हज को जाते हैं, हाजियों को विदा करते हो तुम, लेकिन तुम हज
को नहीं जाते। अबू हुरैरा ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा ने कहा मैं हज को कैसे जा सकता हूँ जबकि मेरी बूढ़ी माँ घर के अंदर है, उसकी खिदमत की जिम्मेदारी मेरी है। अबू हुरैरा से कहा कि तुम एक काम करो, एक लौंडी को, एक कादिमा को तुम्हारी माँ की खिदमत के लिए रखकर तुम हज को जाकर आ जाओ। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि माँ का एक मर्तबा मुझे पाँव दबाने का जो शर्फ मिलता है वो एक मर्तबा पाँव दबाना 70 मर्तबा हज करने से ज्यादा है। कभी हम माँ के पाँव दबाए, माँ का सर दबाए? अरे हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। हम समझते हैं कोई जादू कर दिया, कोई नींबू फिरा दिया। कभी सोचो कि हमने कभी किसी वक्त अपनी माँ को तकलीफ दिया है? हमारे अमाल पर नजर करो। जोरू फेयर एंड लवली पूछी तो रात के 12 बजे जाते हैं, अम्मा सर के दर्द की गोली पूछी तो नहीं माँ विक्स लगा ले को सोजा सबू को ले लगा को दे तू। ये बच्चा पनपेगा? सैयदुना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा किसी कसाम से मुल्क शाम का सफर कर रहे हैं। उमर रास्ते में देखा कि एक आदमी भीख मांग रहा है, जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला है। जुज़ाम उस जमाने की खतरनाक बीमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी किसी को लगती नहीं सिवाय जुज़ाम, और कोई बीमारी किसी को लगती नहीं सिवाय जुज़ाम के। जुज़ामी आदमी को देखकर ऐसे भागो जैसे शेर को देखकर भागते हो। छूत छात इस्लाम में नहीं, छूत छात इस्लाम में नहीं। घर में एक छोटी तकरीब थी हमारे मुसलमान, देखो कैसे ही हमारे अभी, अरे मुजम्मिल साहब कहता कि हर घर उनके घर का चूबा भी वली होगा, आलिम होगा। एक छोटी तकरीब थी, तकरीब का तो खुशी का मौका, छोटी दावत रिश्तेदारों के बीच में। सबको मैं फोन के जरिए से अब्बा जान सब दावत दिए। अचानक सब आए लेकिन एक फैमिली नहीं आई। वो जरा अहम अफराद थे, वो करीब तरीन रिश्तेदार। सब आगे उन्होंने नहीं आना बोलकर फोन करे तो बोला क्या भी समझो ना को मुजम्मिल, बच्ची को गोबरी आ गई है। गोबरी को से भी बड़ी बीमारी नहीं ना। अच्छा गोबरी भी बोली नहीं उन्हें, बच्ची को अम्मा आ गई है। बच्ची की अम्मा तो उसे और एक अम्मा कहां से आ गई है? क्या तेरे शौहर की दूसरी जोरू क्या? सगी अम्मा भी अम्मा, सौतेली अम्मा भी अम्मा। बीमारियों का नाम दो। उसे अम्मा बोलना, आपा बोलना, बुखार को खाला बोलो, कैंसर को दादी बोलो। क्या है बीमारियों का नाम? रिश्तेदारों में गैरों का अकीदा है। मुसलमान खुदा पे भरोसा रखो, हर दर्द की दवा अल्लाह तबारक व तआला रखा है। बीमारियों में छूत छात नहीं है, दिनों में नहुसत नहीं है, महीनों में नहुसत नहीं है। ये अकीदा कलमा पढ़ने वाले का नहीं, पत्थर के सामने अपने माथे को टेकने वाले का है। हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। हमारा नबी हमको पूरा कुरान देकर गया है, निसाब इस्लाम देकर गया है। क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या जायज क्या नाजायज, पूरे मसाइल खुल चुके हैं। हमको इन बातों पर अकीदा रखने की जरूरत नहीं है। जो इन बातों पर अकीदा रखता है उसका ईमान कमजोर है। तौबा करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा। ये बात जाकर औरतों को सुनाओ, छूत छात का कोई मसला नहीं है। गोबरी किसी की वाला अल्लाह जाने से पहले बीमार को देखकर दुआ पढ़ लो, हर छूत खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह हर छूत खत्म हो जाएगा। बीमार को देखकर पढ़ने की दुआ है ये। मुसलमान गलत अकीदों में मुब्तला और अपने ईमान को बर्बाद कर रहा है। कोई बीमारी किसी को लगती नहीं, कोई बीमारी किसी को लगती नहीं। इन्फेक्शन 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 को बोलकर डॉक्टरों पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिए। क्या है इन्फेक्शन? ये हाँ इन्फेक्शन है बेनमाजी से मुलाकात करने पर। इन्फेक्शन है उस घर में
जाने जाने से जिस घर के अंदर टीवी है, इंफेक्शन है उस घर के अंदर जाने से जिस घर की औरत बेहया बेशर्म है, इंफेक्शन है सूद की तिजारत में, इंफेक्शन है झूठ की तिजारत में, इंफेक्शन है तालियां उड़ाने पर, इंफेक्शन है झूठ बोलने पर। ये इंफेक्शन का असर जिस्म को नहीं ईमान को होता है। जिस्म का नुकसान छोटा है, ईमान का नुकसान बड़ा है। जिस्म एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगा, ये जिस्म को कीड़े मकोड़े खा लेंगे, ये जिस्म एक छोटे से घर के हवाले हो जाएगा, लेकिन ईमान बर्बाद नहीं होता, ईमान बर्बाद नहीं होता। इसके इंफेक्शन का कभी आपने एहसास किया? बेतहाशा जाते नहीं हम लोग टीवी वाले घर पर, कभी सोचा हमने ये टीवी वाला घर नहीं है, ये आंखों के ज़िना का डब्बा है। अभी मैंने इमाम मकबूल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पढ़ा इतवार के दिन जब मैं सफर को जा रहा था। इस वक्त वो कौल मेरे पास मौजूद है। मैं 10 मिनट के लिए सकते में पड़ गया। अल्लाह, इस्लाम कितना नाजुक भी है और कितना मजबूत भी है। डंके की चोट में इस कौल को मैं इंशाअल्लाह इस मर्तबा के सीरत के तमाम इजलास में हर शहर हर गली पे रखूंगा। हज़रात उलमा को मालूम होगा ये कौल इमाम मकबूल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मकबूल रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं। उन्होंने कहा मैं उस आदमी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता जो आदमी अपने घर के अंदर गाने वाली औरत को छोड़कर मरता है। उस जमाने में टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था, गाने बजाने के ज्यादा आलात नहीं थे। गाने वाली औरतों को, जिनको मुगन्निया कहते हैं, ऐसी औरतों को घर के अंदर रखकर वक्तन फवक्तन उससे गाना सुनते थे। इमाम मकबूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो आदमी अपने घर के अंदर गाने वाली औरत को रखकर मरता है, मैं उसके जनाजे की नमाज पढ़ता भी नहीं और पढ़ने की इजाजत देता भी नहीं। एक गाने वाली औरत को घर के अंदर रखे, उसके जनाजे की नमाज पढ़ने और पढ़ाने के बारे में इमाम मकबूल रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा सख्त फतवा है। फिर आज उसी फतवे को खियास करो, डिपेंड करो उस मुसलमान के जनाजे की नमाज इमाम मकबूल कैसे पढ़ते थे और उनकी फिक़ह में कैसे इजाजत होगी जिस घर वाला अपने घर के अंदर टीवी रखकर मरता है। गाने वाली औरत के रखने से भी ज्यादा बदतर टीवी का डब्बा है। उस घर के अंदर जाते हुए इंफेक्शन होता है, ईमान को असर पड़ता है ईमान का। सूद के दस्तरखान में बैठेंगे इंफेक्शन होता है। ये जिस्मों का इंफेक्शन नहीं है, ये डॉक्टरों की वाहियात है। उन लोगों का कहना है सुबह की दुआ पढ़ो, शाम तक कोई नुकसान नहीं, शाम की दुआ पढ़ो, सुबह तक कोई नुकसान नहीं, खाने की दुआ पढ़ो, खुदा खाने के इंफेक्शन को दूर कर देता है। सोते वक्त दुआ पढ़ो, खुदा सोने के वक्त पूरी रात के इंफेक्शन को खत्म कर देता है। मुलाकात के वक्त दुआ पढ़ो, अल्लाह ताला मुलाकात और उससे होने वाली औलाद की पूरी जिंदगी के इंफेक्शन को दूर कर देता है। ये मेरे जुमले नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया जो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है उस खाने के नुकसान को खुदा खत्म कर देते हैं। आज टीबी क्यों आ रही है, शुगर क्यों आ रहा है, हार्ट क्यों आ रहा है? या तो इम्तिहान है या नहीं तो हमारे अमाल की सजा है। खुदा हमारी सूरतों को हमारा इम्तिहान कैसे लेंगे? हमारा तो अभी बराबर का इस्लाम में एडमिशन भी बराबर नहीं हुआ, हमारा इम्तिहान कैसे होगा? खाना खाते वक्त हम बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ते तो इंशाअल्लाह कभी कोई बीमारी नहीं आती थी। खाने के उसूल को सामने रखते कभी कोई बीमारी नहीं आती थी। सोने के उसूल को सामने रखते कभी कोई बीमारी नहीं आती थी। एक मसला बोलूं, हो सकता है कि यह मसला हमारे जबी भाई जो सीडी रिकॉर्ड करते हैं सेंसर करना चाहते हैं तो भी कीजिए, लेकिन ऐसे मौके मुझे फिर बार बार नहीं मिलते। जरा गौर से सुन लो, लेकिन पीछे जाकर नहीं बोलना क्या बोले बाज। क्या करूं मेरे दोस्तों, जब मौजू आता है बयान करना पड़ता है। हदीस के अंदर इन तमाम मसाइल को हदीस की रोशनी में पेश किया गया है। मियाँ बीवी जब मुलाकात करते हैं उसका तरीका भी नबी ने सिखाया। सुभान अल्लाह बोलो। अरे ऐसे मसले भी नबी सिखाए क्या? फिर नबी नहीं सिखाया तो क्या हमारे दादा सिखाएंगे? नबी जो होता है उम्मत का हादी कामिल होता है, उसे अपनी उम्मत को हर तरीका सिखाना पड़ता है। इसीलिए जब नबी ने पेशाब करने का तरीका सहाबा को सिखाया तो वो तरीका मुश्रिकों तक खबर पहुंची। मुश्रिकों ने क्या कहा, अरे तुम्हारा नबी कैसे है जो तुमको पेशाब करने का भी तरीका सिखाता है?
सहाबा को बहुत बुरी लगी तो बात हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि आप ये तरीका भी सिखाते हैं, ये तरीका भी सिखाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ जाकर डंके की चोट कह दो कि हमारा नबी ये तरीका सिखाता है, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है जो तुमको तरीका सिखाए। हमारा नबी ये तरीका भी सिखाता है। इस्लाम एक मुकम्मल सिलेबस का नाम नहीं। मुलाकात मियाँ बीवी करने का तरीका भी इस्लाम के अंदर मौजूद है, अहादीस के अंदर मौजूद है। पर्दे की हालत हो, कमरे के अंदर कोई खुला हुआ कुरान का या अल्लाह और उसके रसूल के नामों का तोगरा न हो, बिल्कुल 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 हजरत मुहद्दिसीन ने तहकीक की कि आखिर नबी ने क्यों ऐसे फरमाया। उसके बाद बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नबी के इस फरमान के सामने घुटने टेकना पड़ा। कुदरती तौर पर जिस्मानी एतबार से भी कमजोर होता है और पूरी जिंदगी हमेशा किसी न किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला रहता है। ये तरीका छोड़ने का इन्फेक्शन है। ये क्या है? तरीका छोड़ने का इन्फेक्शन है। सुन्नत छोड़ोगे तो इन्फेक्शन होगा, फर्ज छोड़ेंगे तो इन्फेक्शन होगा, मुस्तहब छोड़ेंगे तो इन्फेक्शन होगा, हराम खाए तो इन्फेक्शन होगा। जमाने ने जिन इन्फेक्शन को रखा है उस इन्फेक्शन का हमारे पास कोई एतबार नहीं। हाँ, एहतियात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एहतियात कर सकते हैं, लेकिन एहतियात भी एहतियात के दर्जे में रहना चाहिए। उसे एक अकीदा नहीं बनाना, उसे एक अकीदा नहीं बनाना। लेकिन हम मुसलमान अकीदे बना लेते हैं। अभी भी चल रहा है सफर का महीना मनहूस। शादी महल देखो कैसे बेकार पड़े हैं। शादी महल के ओनर कौन भी आता क्या बोलते इंतजार नहीं। क्या है मौलवी साहब? शादी महल के ओनर्स कौन भी आता क्या बोलकर इंतजार नहीं कि भाई तुम्हारा शादी महल एवरी टाइम एवरी डे बिजी रहता था ना, अब मक्खा मारने को है ना। नहीं हजरत, सफर में शादियां नहीं करते कि भी सफर में शादी नहीं करते। सफर में शादी करे तो जोरू मरद को हो को नहीं आता कहते। सफर के महीने को भी जोरू मरद की मोहब्बत को क्या ताल्लुक है। जोड़ाने को शादी करे तो हो जाता कि, जुल्म की दावत खाए तो हो जाता कि, टीवी वीडियो पकड़े तो हो जाता कि, हर गुनाह और हराम करे तो हो जाता। लेकिन सफर के महीने में शादी करे तो नहीं होता। जरा देखिए, हर हराम पर अमल हो जाता, लेकिन सफर के महीने में शादी करे तो होता नहीं। इसका इस्लाम में कहीं सबूत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जुज़ामी आदमी को देखकर ऐसे भागो जैसे किसी शेर को देखकर भागते। ऐसा जुज़ामी आदमी हजरत उमर को रास्ते में मिल गया। हर मरीज को देखते ही दुआ करने का हुक्म। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जुज़ामी आदमी को देखकर दुआ किए, अल्लाह इसे सेहत अता फरमा। वो फौरन मरीज कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन उमर, मेरे लिए दुआ न करो, मेरे लिए दुआ न करो। अगर तुम मेरे लिए दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, फिर तुमको अफसोस होगा, मेरा रब मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा। जबकि तुम्हारे पास कई अहम फजाइल ऐसे हासिल हैं, उन फजाइल की वजह से तुम्हारी दुआ कबूल होना जरूरी है। इसलिए कि तुम सहाबी रसूल हो, इसलिए कि तुम वक्त के एक बेमिसाल बादशाह हो, आदिल और मुनसिफ, इसलिए कि तुम मुसाफिर हो। क्या है मुसाफिर? मुसाफिर भी हैं, आप सहाबी भी हैं, आप खलीफतुल मोमिनीन भी हैं। इतने फजाइल के बाद अगर आप दुआ करें, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी तो आपको रद्द होगा। आए अमीरुल मोमिनीन, आप दुआ ना करें। हजरत उमर फारूक ने पूछा, भाई मरीज को देखकर दुआ करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, मैं तेरे लिए दुआ क्यों ना करूं? हजरत उमर फारूक को उस मरीज ने कहा, तुम्हारी दुआ मेरे हक में कबूल नहीं होगी, इसलिए कि इस हालत पर मैं जो पहुंचा हूं वो मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। जिसे माँ की बद्दुआ लग जाती है, दुनिया की कोई दुआ उसकी जिंदगी को बदल नहीं सकती।
जिसे मां की बद्दुआ लग जाती है, दुनिया की कोई कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, उसकी दुआ उसे बदल नहीं सकती। मां का दर्जा, बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन में जिस बच्चे का बाप राजी, आसमान में उस बच्चे से खुदा राजी। हम अपने बापों को खुश करते हैं, बाप की दुआ लेते हैं, बाप की जरूरतों को पूरा करते हैं। पूरी रात बाप घर के अंदर खांसता बैठा है। ये तकरीर के जुमले नहीं मेरे दोस्तों, दर्दमंद बूढ़ों की दास्तान पेश कर रहा हूं। पूरी रात बाप घर के अंदर खांसता बैठा है। कमरे का दरवाजा खोलकर बाप को नहीं पूछता कि अब्बा क्या वास्ते खांस रही आप। हर रात को नहीं पूछा, सुबह को तो पूछ सकता है, नहीं पूछता। इस उम्र में ये बूढ़ा बाप कमाने के लायक नहीं है। जितना कमाया इमारतें बनाकर अपनी औलाद के हवाले करके अब मजबूर होकर घर के अंदर बैठा है। जब हम छोटे थे, हमारा बाप हमको कभी पूछने पर पैसे देता था, कभी पूछे बगैर भी पैसे देता था। स्कूल को जाते पैसे देता, स्कूल से आते पैसे देता, मदरसे को जाते पैसे देता, मदरसे से आते पैसे देता। बाहर किसी बच्चे का कपड़ा देखता, बाप के दिल में ख्वाहिश होती मेरे बच्चे को भी मैं ऐसे पहनाऊं। बाहर किसी बच्चे का शूज देखता, अपने बच्चे को ऐसे शूज पहनाने की फिक्र करता। अब यही बूढ़ा बाप दुकान, फैक्ट्री, मुलाजमत सबसे खाली होकर घर के अंदर बैठा है। कभी ये लाखों में तीरने वाला बेटा अपने बाप को पूछता भी नहीं कि अब्बा क्या जरूरत है आपकी, पूछता तक नहीं। कभी ये बेटा बगैर पूछे के बाप के जेब में 500,000 रुपए की नोट नहीं रखता। ऐसी दौलतों पर जूती पड़े, ऐसी दौलतों पर लानत हो जो बेटा अपने बाप को उसके कर्जों का पैसा नहीं देता। एक बाप आया मेरे पास, आकर कहा कि हजरत जरा आप बयान में ये बातें बोले। मैंने कहा कि भाई तुम्हारी दास्तान सुनाने के लिए जुमे का उन्वान है। उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, मेरी जिंदगी उम्मत के लिए नमूना बनेगी। जब पूछा कि आपके तकरीबन 6 बेटे हैं, मैं खानदान को जानता हूं, गीबत नहीं कर रहा हूं, नाम लूं तो गीबत, इबरतनाक वाकयात पेश करना है। माँ बाप की दुआ लो। अगर माँ बाप का दिल दुखेगा, माँ बाप की बद्दुआ होगी, फिर नबी भी कुछ नहीं कर सकता। हजरत अलकमा का वाकया पेश नहीं किया मैं 2 महीने तो जुमा पहले। सहाबी रसूल बिस्तर मौत पर, सहाबा अतराफ, कलमा नहीं, नबी जा रहे हैं, कलमा नहीं। आज अकीदा है कि मौलवी आकर हमारे मरने के बाद हमारे नाम पर फातिहा पढ़ देगा, खुदा जन्नत के दरवाजे खोल देगा। जन्नत किसी के बाप की जागीर है। जमीन में मां का दिल दुखाए, जमीन में बाप का दिल दुखाए, और खुदा अदालत की कुर्सी में बैठकर ऐसे माँ बाप को सताने वाले बच्चे के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे। ऐसे अकीदे पागल अकीदे हैं। माँ बाप है, माँ बाप जितना भी बोले उतना कम। अल्लाह के रसूल जाकर जिस सहाबी को कलमा नहीं पढ़ाए, उसका गुनाह क्या होगा? नमाज छोड़ने वाले को बहुत बड़ा गुनहगार कहते हैं, रोजा छोड़ने वाले को बहुत बड़ा गुनहगार कहते हैं, कत्ल करने वाले को बहुत बड़ा गुनहगार कहते हैं। मैं कुरान और हदीस से साबित कर सकता हूं, शिर्क के बाद धरती का सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप को तकलीफ देना। शिर्क के बाद धरती का सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप को सताना। हुजूर जाकर कलमा नहीं पढ़ा सके सहाबी को, और हमारे सराहने आकर खड़ने वाला इमाम नबी नहीं, हम मरने वाले सहाबी नहीं, हमारे मौत का क्या होगा? सही रिवायत में आता है 3 आदमियों पर मौत सख्त बनकर आ जाती है। एक नमाज छोड़ने वाले पर मौत सख्त, दूसरा शराब पीने वाले पर मौत सख्त, तीसरा माँ बाप को सताने वाले पर मौत सख्त। दिल में बसा लो इन तमाम बातों को। आज ही जाकर अपने माँ की, अपने बाप के खत में पकड़ पकड़ कर माफी चाहना। अब्बा माफ कर दो, अब्बा जान माफ कर दो, अम्मी जान। उनकी दुआ नॉन स्टॉप जन्नत अल्लाह ताला के दरबार में जाती है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمہ پڑھا کر کلمہ نصیب نہیں ہوا. جب تحقیق کرتے تو پتا چلا کہ علقمہ سے اس کی ماں ناراض ہے. اس وقت علقمہ کے گھر میں نبی ہے، صحابی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان علی ہے، لیکن اس کی اماں نہیں ہے. نبی نے فیصلہ کر لیا جس بچے سے اس کی ماں ناراض ہوتی ہے اس بچے کو نبی بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، جا کر علقمہ کی ماں کو بلا کر لاؤ. علقمہ کی ماں کو بلانے کے لیے گئے، ماں آنے سے انکار کرتی ہے. اصرار پر کہا گیا کہ اماں تیرے بیٹے علقمہ کا وقت قریب ہے اور تیرے بیٹے کے قریب وقت کا نبی بھی ہے، تیرے بیٹے کے واسطے نہیں بلا رہے ہیں، نبی کا حکم ہے، تجھے آنا پڑے گا. بوڑھی عورت اللہ کے رسول کے فرمان کے اطاعت پر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ کی ماں سے، اے اماں کیا تو تیرے بیٹے سے ناراض؟ ہاں یا رسول اللہ میرے بیٹے سے ناراض. کیوں ناراض؟ اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جسے میں پیٹ میں رکھی، جسے جنم دی، جسے 2 سال دودھ پلائی، جس کے پیشاب و پاخانے کو میں کبھی کراہت کے ساتھ پاک نہیں کیا، جس کے لیے دعائیں کرتی تھی، وہی بیٹا جوان ہونے کے بعد جب اس کی نظر بیوی پر پڑی تو مجھے چھوڑ دیا. بیوی پر، مجھ پر میں اس کی بیوی کو ترجیح دینے لگا، حتیٰ کہ مجھے علقمہ گھر سے باہر تک کر دیا. میں علقمہ سے بہت ناراض ہوں یا رسول اللہ، میں معاف نہیں کرنا چاہتی علقمہ کو. ایک بیوی کے پیچھے پڑ کر ماں کو قربان. میں اکثر کہا کرتا ہوں دونوں کو بیلنس میں رکھ کر چلو، بیلنس میں رکھ کر چلو، سمجھاؤ. بلکہ آج کے زمانے میں قانونی کیا رہنا، شادی کے وقت میں جوڑا نکو، جہیز نکو، کیا بھی نکو، لیکن میں ہمارے اماں بابا کے ساتھ رہوں گا، تمہاری بیٹی بھی رہنا. لیکن میں ایک طرف بات نہیں کرتا، یہاں کچھ سسرے بنے ہوئے افراد بھی رہیں گے. دونوں طرف سے کمی ہے. بیٹی اور بہو پر 2 نگاہ، جوئی اور بیٹے پر 2 نگاہ. ایک بوڑھا گھر کے اندر ہے، گھر کا بڑا ہے، بیٹی کی غلطی کو جیسے معاف کرتا ہے، بہو کی غلطی کو بھی انہیں معاف کرنا کہ نہیں کرنا. ارے منڈی ہلاؤ بھائی کہ بیٹا تو نہیں کیا کسی بھی. جیسے بیٹی کی غلطی کو معاف کرتے ویسے بہو کی غلطی کو بھی معاف کرنا. بیٹی غلطی کر ڈالی تو کیا بچ نہیں، بہو غلطی کر ڈالی اٹھا جا فون، کیا جی تمہارے بیٹی کو یہ تربیت کرے سو کسے سمجھن کو فون کرنی. وہ بچی گھر کی بہو حلی تو بھی فون کر کو بولتے، حجری تو بھی فون کر کر بولتے. ذرا سوچو کہ اس کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا فیصلہ کرتے ہو. خیر وہ الگ عنوان ہے، کبھی عرض کروں گا. اللہ کے رسول نے حضرت علقمہ کی اماں سے کہا معاف کرو. نہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کرنا چاہتی، نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو، اے صحابہ آؤ، سب لکڑیاں جمع کرو، لکڑیوں پہ آگ لگاؤ اور اس آگ میں اس ماں کے سامنے علقمہ کو ڈالو. صحابہ لکڑیاں جمع کرنے لگے، آگ لگانے لگے. ماں ہوتی ہے، تڑپ کر پوچھی یا رسول اللہ میرے نگاہوں کے سامنے میرے بچے کو اس آگ میں ڈالیں گے آپ؟ ہاں اس آگ میں ڈالوں گا. اگر اس آگ میں میں نہیں ڈالوں گا تو اس آگ میں خدا ڈالے گا. بتا کہ یہ آگ بہتر ہے وہ آگ نہیں یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ یہاں بھی اس آگ میں نہ رہے، وہاں بھی اس آگ میں نہ رہے. آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے میرے بچے کو معاف کر دیا، میں نے میرے بچے کو معاف کر دیا. ہمارے بچوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بھی فوراً معاف کر دینا چاہیے. اچھی موت مرتا نہیں رہ تو باوت بیٹے کو بول رہا. میرے سے کچھ بھی حالت فرماتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ فرشتے انتظار میں رہتے ہیں ماں باپ کی زبان سے کیا نکلے ہم آمین کہیں. ہمارے بچے کو ہمیں بد دعا دینا، غلطی ہوگی جا کام ہی جا کر تو اچھا رہے. ایک باپ کا پیٹ یہ چاہتا، ایک ماں کا پیٹ یہ چاہتا. کچے کچے گالیاں اولاد کو دیتے، بڑی بڑی بد دعا دیتے، ادنتری موت مرتا رہے. تو میں سنیا سے بد دعے ایک باپ کے بچے کو، پھر جب انہیں ادنتری موت مر جاتا لیڑ لیڑ کو روتا. کئی کو حاجی صاحب لیڑ کو رو رہی، تمہاری ہی بد دعا کا نتیجہ ہے. نہیں جڑوں کے پیچھے چلے گا تو بھی ایک ماں باپ کا فرض بنتا ہے جہاں کام بھی جا کو اچھا رہے.
तू पाल को मैं पलना जरूरी नहीं, अल्लाह पाल को मैं पलना जरूरी है। क्या मालूम कि तुम्हारी दुआ से तुम्हारे बच्चे का दिल बदल जाए। अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत करो। एक बूढ़े मियाँ है, हजरत 6 बच्चे हजरत बनते, एक कट्टा बीड़ी को तरस दो हजरत में। अब ये नहीं पूछना बीड़ी पीना जायज क्या हजरत बोलकर, वो अलग उन्वान मेरे दोस्तों। बूढ़ा बाप बीड़ी पीता की नहीं पीता की, लेकिन दर्द देखो, जमाना देखो, नबी का गुलाम देखो, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान देखो। जिस आइस की गाड़ी पर बेटा इशारा करता था, 50-50, 150 रुपए की आइसक्रीम रोजाना जिस बाप ने अपने बच्चे को खिलाया, उस बाप को एक बीड़ी के कट्टे के लिए बेटा तरसा रहा। बीड़ी के कट्टे के वास्ते दोनों को, बाप के खर्चे के वास्ते 6 बच्चे, 6 बच्चे। मैं रो दिया उस बाप के तड़प को देखकर। अभी करीब में इस उन्वान को शुरू कर तो पूरे बूढ़े खुश हैं और जरूरत भी है इस उन्वान को पेश करने की। मैंने उनके एक बच्चे से कहा कि भाई तुम्हारे अब्बा को खर्चे को तुम्हें पैसे नहीं देते, क्या जरूरत हजरत, खाना मिल जाता, पलंग है, घर है, अल्लाह ने बोल तस्बीह पढ़ लगा, इनको पैसे होना कहते हजरत। अरे भाई उनको पैसे लेको उन क्या करते ही नहीं करते, तुम्हारा फर्ज तो है नहीं देना। माँ बाप का नफका बच्चों पर वाजिब है। जो माँ बाप कमाने के लायक नहीं होते, ऐसे माँ बाप को बच्चे अपनी कमाई का एक हिस्सा देना वाजिब है। फिर वो बेटा बोल रहा है नहीं हजरत इनको पैसे दे डाला तो नहीं, इनके बेटिया में बांट डालती हजरत। उसके बेटिया का सोना गंदी तेरे बहाना चला। कितना छोटा दिल रखकर इस दुनिया में जिंदगी कर रहा है, कितना छोटा दिल रखकर इस जिंदगी में दुनिया में जिंदगी कर रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, माँ बाप की खिदमत करो। जन्नत जो इंसान की इबादतों की आखिरी हद है, हर इबादत का बदला जन्नत। उस जन्नत को अल्लाह ताला कहाँ रखा, जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे। मेरे नबी चाहते तो ये कहते कि ऐ मेरी उम्मत तुम्हारी जन्नत मेरे कदमों के तले है, लेकिन अल्लाह जन्नत को एक नबी के पांव के तले नहीं रखा। अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है। इसीलिए बड़े बड़े अकाबिर मरने से पहले वसीयत लिखते थे, मैं मर जाऊं तो मेरी खबर मेरी माँ के कदमों तले रखना। उनको हकीकत पर 100% यकीन था। वो जन्नत अल्लाह ताला माँ के कदमों के नीचे रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया एक मर्तबा अगर कोई अपनी माँ और अपने बाप पर मोहब्बत की नजर डालता है, खुदा एक हज का सवाब अता करते हैं। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह एक नजर पर इतना बड़ा सवाब है, अगर कोई बेटा रोजाना 100 मर्तबा देखे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 100 हज का सवाब है। 100 मर्तबा देखे 100 हज का सवाब है, 200 मर्तबा देखे 200 हज का सवाब है। लेकिन आज क्या है मेरे दोस्तों, जमाना माँ को देखता नहीं, बाप को नहीं देखता। मैं वो वाकया को इसी वक्त यहाँ खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। जो दरवाजा खिटखिटाता है अदालत की, उस औरत का क्या अंजाम होता है और मगरिब की अदालत ने उस माँ के लिए क्या फैसला करती है, आइंदा जुमा हजरात के सामने पेश करूंगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हस्ब मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली जुमेरात या हफ्ते के दिन सामने के तीसरे फ्लोर की मोल्डिंग का इंशाअल्लाह इरादा किए हैं। जल्दी बालू और सीमेंट और पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दें। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए।